Hello students, so today we'll be dealing with the topic antibody structure, classes and functions. Okay, so before moving on to the structure of antibody, let us quickly revise how antibodies are formed. Okay, so I have told you this like in earlier lectures. What happens that we have B cells or B lymphocytes. So B lymphocytes, they have membrane bound antibodies in them. Okay, antibodies, they are bound on surface of the B lymphocytes and they are specific to a particular kind of antigen. Okay, antibodies, they are antigen specific. So when a specific antigen binds to a particular antibody, then that B lymphocyte, it gets differentiated into plasma cells when antigen binds to it. Okay, so it gets differentiated into plasma cells, and then this plasma cell, it releases the membrane bound antibody in the body fluid, and then they becomes the secretory antibodies. Okay, now those antibodies, they are no longer bound to the membrane of B lymphocytes, they are free in the body fluid, and wherever they'll find the antigen, it will bind with the antigen. Okay, where the specific, the complementary antigen. So wherever the antibody, it will find its the antigen which is specific to it, so it will bind with it and will produce its effector function in order to remove the pathogen or the antigen. Okay, so yeah, now we'll move on to the structure of antibody. So here you can see, so what is antibody? First thing, antibody, these are globular proteins. Okay, antibodies are proteins in nature. Fine, so this is a common structure of antibody. So here you can see this antibody, it has 4 peptide chains. Okay, 1 peptide chain, 2 peptide chain, third peptide chain and fourth peptide chain. Okay, so an antibody, it consists of 4 peptide chains. These 2 peptide chains, this one and this one, they are known as light chains. You can see as they are shorter in size, so they are light chains. They are shorter in size and less in weight. Okay, light chains. And the other two, these are known as heavy chains. Fine, so the light chains, they are about 22,000 Dalton in weight, and the two heavy chains, they are around 55,000 Dalton or more in the weight. Fine, these two light chains, they will be identical to one another. Similarly, ये जो दो heavy chains होंगी, ये दोनों भी क्या होंगी? Identical होंगी, एक दूसरे के जैसी होंगी एकदम. Fine, सीक्वेंस में और स्पेसिफिसिटी में. फाइन, नाउ देखो, अब ये जो एक लाइट चेन है, you can see that each light chain is bound to the heavy chain by disulfide linkage. This is the covalent interaction that is found between the light chain and heavy chain. And also many non-covalent interactions are found between this light chain and heavy chain, like salt bridge and hydrogen bonds and hydrophobic interaction. Okay, so here similarly one disulfide linkage is present between this light chain and heavy chain, so a heterodimer is formed. Here अगर हम individually देखें, this is a heterodimer of light chain and heavy chain, and this is a one heterodimer of light chain and heavy chain. What is a heterodimer? Dimer क्या होता है? जिसमें दो यूनिट्स होती हैं. हेट्रोडाइमर ऐसा डाइमर जिसकी दोनों यूनिट्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं. होमोडाइमर जिसकी दोनों यूनिट्स सेम होती हैं. तो यहाँ जो डाइमर है, इसकी एक लाइट चेन है, एक हैवी चेन है. बोथ यूनिट्स आर डिफरेंट, सो दिस इज अ हेट्रोडाइमर. ओके, नाउ also disulfide linkage is present between one heterodimer of light chain and heavy chain and another heterodimer of light chain and heavy chain. Okay, this disulfide linkage, it is joining both the heterodimers. Therefore, antibody is also known as dimer of dimers. Okay, these are the two dimers and this is one whole dimer of, these are the two dimers and this is one whole dimer of both these dimers. So this is known as dimer of dimers. Okay, so wait, let me zoom it a little bit. Okay, now we'll see the anatomy of both these light and heavy chains. Okay, students, so here you can see this is the, since this is a protein, so this is the N-terminal region and this is the C-terminal region of the protein. Fine, so firstly let us talk about the L chain or light chain. Fine, so जो light chain है, it is composed of around 220 amino acids. ठीक है, light chain is composed of 220 amino acids and
So now you can see the light chain, it is differentiated into two segments, VL and CL. Okay, here you can see VL and CL. So the first 100 or 100 to 110 amino acids, they are found in this segment, VL segment, and rest in this CL segment. Fine. So what is this VL and CL segment? L stands for light chain, and this V stands for variable, and the C stands for constant. Okay, so the first region of the light chain जो हम VL region कह रहे हैं, the first segment VL segment, variable light segment, तो क्या है, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, जो 100 और 110 अमाइनो एसिड्स VL segment में प्रेजेंट हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस VL segment विल वेरी. ठीक है, इट विल बी वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होगा. मतलब हर तरह के, अगर आप एक एंटीबॉडी है, द अदर एंटीबॉडी विच विल बी स्पेसिफिक टू सम अदर एंटीजन, तो उसका VL का अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. दैट्स वाई इट इज नोन एज VL, वेरिएबल लाइट चेन सेगमेंट, एंड दिस इज द CL, कॉन्स्टेंट लाइट चेन सेगमेंट. तो CL सेगमेंट में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, दैट विल बी मोर और लेस कॉन्स्टेंट. फाइन. तो जो हमारा CL रीजन है, उसमें भी जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, दैट इज़ मोर और लेस कंजर्व, लेकिन दो टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देयर आर टू सीक्वेंसेस दैट आर कॉमनली प्रेजेंट इन द CL सेगमेंट. तो अगर एक तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, तो बेस्ड ऑन दो सीक्वेंसेस, जो कॉन्स्टेंट रीजन सीक्वेंसेस, जो हमारा ये लाइट चेन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज लैम्डा एंड वन इज कापा. ओके, इसका नोट्स आगे की स्लाइड्स में है, सो डोंट वरी. अभी हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस फिगर के हेल्प से, और आगे इसका हमारे पास रिटन मटेरियल है. फाइन. सो बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द CL रीजन, द लाइट चेन इज आइदर ऑफ लैम्डा टाइप और कापा टाइप. फाइन. So in humans, 60% light chain are kappa, 60% light chain of antibodies, they are kappa, and 40% antibody, they have lambda type light chain. Okay. Whereas in mice में क्या होता है, 90% of light chains they are kappa type की होती हैं, and only 5% of antibodies have light chain जिसका constant region is lambda type. Fine. And one more thing, in an antibody both the light chains will be either kappa या lambda. ऐसा नहीं होगा कि एक ही एंटीबॉडी का वन लाइट चेन इज कापा टाइप एंड अदर इज लैम्डा टाइप. नो, बोथ द लाइट चेन्स विल बी आइदर कापा और लैम्डा टाइप. ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द H चेन एनाटमी. फाइन. सो सिमिलरली जैसे हमने V चेन में देखा, वैसे ही लाइट चेन में देखा, वैसे ही हम हैवी चेन में भी देख रहे हैं. देयर इज वन VH region. VH is variable region of heavy chain. Similarly here you can see both of these are identical in nature. तो एक सा ही होगा, जैसा एक चेन में होगा वैसा ही दूसरी चेन में होगा. ठीक है. So VH region, अगेन ये जो VH region है, ये जो पहला आप रीजन देख रहे हैं VH region, ये वेरिएबल है. और अमाइनो एसिड अगर वेरिएबल होगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. अलग अलग एंटीबॉडीज़ में अलग अलग अमाइनो एसिड सीक्वेंस अगर है वेरिएबल रीजन में, तो वेरिएबल रीजन, इसी रीजन पे हमारी क्या होती है, एंटीजन बाइंड करता है ना, एंटीजन बाइंडिंग साइट. ये जो वेरिएबल रीजन्स हैं, दे आर ओनली फॉर्मिंग द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. तो क्या होगा, व्हेन दिस when there will be a difference in the sequence of amino acids in this variable region, तो क्या होगा, अलग अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनेंगी अलग अलग तरह के एंटीजन्स के लिए. इसीलिए क्या होता है, दैट एंटीबॉडीज दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. फाइन. सो दिस इज द VH रीजन ऑफ हैवी चेन. नाउ लाइट चेन में क्या था, सिर्फ एक कांस्टेंट रीजन था, लेकिन हैवी चेन इसमें क्या है, 3 कांस्टेंट रीजन्स आर फाउंड, CH1, CH2 एंड CH3. ओके. नाउ वन मोर थिंग, जो हम ये बात कर रहे हैं वेरिएबल रीजन की, द वेरिएबल रीजन जो VH और VL सेगमेंट से जो वेरिएबल रीजन बन रहा है, तो इस सेगमेंट में भी, पूरे VH और पूरे VL सेगमेंट में भी, इसके अंदर भी एक ऐसा रीजन होता है जो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है, विच इज़ नोन एज हाइपर वेरिएबल रीजन. ठीक है, विद इन VH एंड VL इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है, विच इज़ नोन एज हाइपर वेरिएबल रीजन, या उसे हम बोलते हैं CDRs, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन क्यों, क्योंकि वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, इट इज़ डिटरमाइनिंग द कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द एंटीजन.
ओके ओके, सो वन मोर थिंग जो इस फिगर में मेंशन की है, दैट इज दिस पेपेन क्लीवेज साइट्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ अर्ली, जब बहुत पहले when scientists were trying to identify the structure, to discover the structure of an antibody, so what they did, they cleaved a antibody molecule with the help of this protease, that is papain. Okay, अब papain ने क्या किया, it cleaved the antibody at this side, जहाँ पे इन्होंने दिखाया है यहाँ पे papain cleaved the antibody at this side. तो क्या हुआ, papain की cleavage के बाद दो segments जो है ऑप्टेन हुए, दैट इज वन इज दिस, ये होगा, एंड अदर विल बी दिस वन, क्योंकि पेपेन का क्लीवेज तो यहाँ है, ये दोनों यहाँ से लिंक्ड है, तो दो सेगमेंट वर प्रोड्यूस, ठीक है, पेपेन क्लीवेज के बाद. सो व्हाट साइंटिस्ट डिड, दे नेम दिस सेगमेंट, ये जो ऊपर वाला ऑप्टेन हुआ था, इट एज फैब सेगमेंट. फैब इज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग. Okay, because this particular segment, this is responsible for antigen binding. और जो नीचे का segment obtain हुआ था, इसे इन्होंने क्या नेम किया, FC, fragment constant. Okay, this region is constant, so यहाँ क्या हुआ, FC region this is. Okay, so this fab segment, this is fab फ्रेगमेंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू द एंटीजन. और ये जो FC फ्रेगमेंट है, ये क्या करता है, जो ये वाला फ्रेगमेंट है या जो ये वाला रीजन है एंटीबॉडी का, दिस FC फ्रेगमेंट इट्स बाइंड टू अदर इम्यून सेल्स. ठीक है, ये क्या करेगा, बाइंड्स टू अदर इम्यून सेल्स, और उसके बाद अपना इफेक्टिव फंक्शन, वॉट एवर फंक्शन इज नेसेसरी, जो भी यहाँ पे अगर हमारा एंटीजन बाइंड किया, ठीक है, और ये जो है किसी और इम्यून सेल से, सेट मैक्रोफेज या किसी भी और इम्यून सेल से बाइंड हुआ, और उसके बाद जो भी इफेक्टिव फंक्शंस होंगे इन ऑर्डर टू रिमूव दिस एंटीजन जो यहाँ पे बाइंड है, दैट विल बी परफॉर्म्ड. ओके, सो दिस FC रीजन, इसका क्या फंक्शन है, टू बाइंड विथ अदर इम्यून सेल्स. ओके okay, so moving forward, so yeah, this is the written material of what we have already discussed about. This is an introduction of antibodies, या आप बाद में पढ़ लेना या notes बना लेना. okay, and anatomy of light and heavy chain, which we have already discussed. okay, yeah, one more thing, जैसे हमने पढ़ा लाइट चेन का, जो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि जो कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन है, उसमें दो तरह के सीक्वेंसेस मिलते हैं, दो तरह का अमाइनो एसिड सीक्वेंस मिलता है, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइट चेन इज आइदर कापा और लैम्डा. ओके, सो सिमिलरली जो एच चेन का, सिमिलरली जो एच चेन का वेरिएबल रीजन के अलावा जो बाकी सेगमेंट है, जो बाकी सेगमेंट एच चेन का है, उसमें क्या है हमारे पास, वैसे तो ये कांस्टेंट है, CH1 CH2, दिस इज कांस्टेंट रीजन, VH इज वेरिएबल रीजन, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है इस सेगमेंट में. दिस सेगमेंट विच इज़ कांस्टेंट, इसमें क्या है हमारे पास 5 तरह के सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट. ठीक है, 5 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें से कोई भी एक तरह का सीक्वेंस विल बी प्रेजेंट एक एंटीबॉडी में, और दोनों में एक ही होगा. ठीक है, बोथ दीज चेन्स आर आइडेंटिकल, एंड बेस्ड ऑन दोज 5 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ दिस हैवी सेगमेंट ऑफ दिस कांस्टेंट सेगमेंट ऑफ हैवी चेन, जो हमारा एंटीबॉडीज़ है, या जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं. वाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि दिस इज एंटीबॉडीज, दे आर अ member of the family of immunoglobulin family of proteins. okay, तो based on that जो हमारा ये antibodies है, based on the sequence of this constant region of heavy chain, हमारी जो antibody है, they are divided into 5 different types. okay, जिसे हम बोलते हैं अलग अलग टाइप के immunoglobulins भी बोलते हैं हम antibodies को. okay, तो वो हम आगे देखते हैं, आगे एक टेबल बना हुआ है, उसे हम एक बार देखेंगे. so yeah, this we have discussed. This also we have discussed. So yes, the length of constant region of H chain is 330 amino acids for alpha, gamma and delta, and 440 amino acids for mu and epsilon. ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ओके, हाँ, तो ये है. सो एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ एच चेन. जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो हमारे हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है, वो क्या होगा, 5 तरह का हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दो सीक्वेंसेस हमारी जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, 5 डिफरेंट क्लासेस की होती है. सो सी, जैसे हमारा लाइट चेन में क्या था, कापा और लैम्डा था, सिमिलरली कांस्टेंट रीजन ऑफ एच चेन कितने टाइप के होते हैं, म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. ओके, तो the antibody which has mu sequence of the in the
कांस्टेंट रीजन ऑफ एच चेन, वो क्या है, IgM एंटीबॉडी क्लास में आता है, जिसमें गामा सीक्वेंस है दैट विल कम अंडर IgG क्लास, alpha sequence will come under IgA immunoglobulin A class of antibody, delta will come under immunoglobulin D class of antibody and epsilon sequence will come under immunoglobulin E class of antibody. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी हो गई. एंड जो हमने पिछले उसमें देखा कि हैवी चेन, जो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, तो अल्फा, गामा और डेल्टा सीक्वेंस में दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A, G और D में हैवी कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन में 440 अमाइनो एसिड्स, 330 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन म्यू एंड एप्सिलॉन दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन M and E, the number of amino acids that are present in constant region of heavy chain is 440 amino acids. Okay. And yeah, one more thing, जो है IgG क्लास है, जहाँ पे हमारा कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन में गामा सीक्वेंसेस प्रेजेंट, और जिसे हम IgG सब क्लास कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत a little variation is found in that IgG also. तो इसलिए जो IgG है उसे क्या किया है, based on that variation IgG को 4 और सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, IgG 1, 2, 3 and 4. Similarly little variation is found in this alpha sequence और immunoglobulin A sequence, तो उसे हम 2 सब क्लासेस में उसे further classify, it is classified into 2 more sub classes, that is IgA1 and IgA2. Okay. Okay, so moving forward, yeah, so now we'll move forward to domain structure of antibody. So what is domain structure of antibody? ठीक है, अभी तक तो हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर देख लिया कि एंटीबॉडी में क्या क्या सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फाइन, नाउ डोमेन स्ट्रक्चर इज एक्चुअल क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो होता है. फाइन, तो इसमें क्या है, वही जो उसमें हम अलग अलग सेगमेंट्स पढ़ रहे थे ना, VH, VL, CH, CL, तो उसी को क्या दिखाया है, इसमें डोमेन के फॉर्म में दिखाया है, दैट इज जो इसका एक्चुअल क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है उसके फॉर्म में दिखाया है, डोमेन्स के फॉर्म में दिखाया है. ओके, तो जो एंटीबॉडी होती है, लाइक एनी अदर प्रोटीन, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है एज आई टोल्ड यू, तो लाइक एनी अदर प्रोटीन, हर प्रोटीन का अगर हम सिंप्लीफाई करें स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन क्वाटर्नरी. सो सिमिलरली एंटीबॉडी का भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट. इसका एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा लाइट चेन का, एंड एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा हैवी चेन का. सो दैट इज द, या हियर इट इज, सो दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, दिस लाइट चेन एंड हैवी चेन सेपरेटली, दीज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है, एक सिंपल चेन जो है अमाइनो एसिड की, it is then folded into beta pleated sheets. Okay, so that forms the secondary structure of antibody. Fine, and then this secondary structure, it is further folded into compact globular domains. ठीक है, ये जो हमारे globular domains हैं, ठीक है. सो दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर. एंड देन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दैट दिस V एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में द लाइट चेन एंड द हैवी चेन जब ये एसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज, तो क्या बनता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है. ओके, तो अब हम एक बार ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी मच सिमिलर जो हमने आगे स्ट्रक्चर देखा था उससे. This is the variable region, variable domain, and 3 constant domains, CH1, CH2 and CH3. Similarly, in light chain, 1 variable domain and 1 constant domain. Okay, and this is the hinge region. Hinge मतलब जैसे डोर में भी आप देखते हैं जहाँ से दरवाज़ा मुड़ता है, that is the hinge region. So this is जहाँ से हमारी एंटीबॉडी टर्न हो रही है. So this is the hinge region. Okay, so in immunoglobulin A, G and D का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है. इसमें क्या होता है, 3 कांस्टेंट डोमेन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जो हम A, G, अभी तक जो भी हमने क्लासिफिकेशन देखा इसका A, D, G, E और G, E एंड M, जो 5 क्लास टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी क्लास हमने पढ़ी हैं, वो क्यों है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन. ठीक है, ये अच्छे से याद रखना. तो इसीलिए जो हमारा हम देख रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन A, D,
ए, जी और डी जो है उसमें क्या है, जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, उसमें 3 डोमेन्स प्रेजेंट है, CH1, CH2 एंड CH3 एंड 1 hinge region is present. Whereas in immunoglobulin class E और M में, IgE and IgM में क्या होता है, instead of this hinge region यहाँ पे भी इसमें 1 डोमेन इज प्रेजेंट, यहाँ पे भी एक CH डोमेन प्रेजेंट होगा, ठीक है. सो इन इम्यूनोग्लोबुलिन A, G और D में ओनली 3 CH डोमेन्स आर देयर, CH1, CH2 एंड CH3, 3 कांस्टेंट रीजन है, वेयर कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन में, ओके. वेयर एज इन इम्यूनोग्लोबुलिन E and M there are 4 constant regions, CH1, CH2, CH3 and CH4, okay. So rest all we have discussed इसमें जो भी है, हाँ बाकी कुछ दिया है, fine. So moving forward, या सो फैब, FC एंड हिंज रीजन ऑफ एंटीबॉडी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट एंटीजन बाइंडिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय अमाइनो टर्मिनल रीजन एंड इफेक्टिव फंक्शन बाय कार्बोक्सिल टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड हाइपर वेरिएबल रीजन ऑन L चेन एंड H चेन फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा ये VL और VH है, इसके अंदर भी कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ हाइपर वेरिएबिलिटी होती है, जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, दिस विच इज़ नोन एज हाइपर वेरिएबल या कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन. सो दैट पर्टिकुलर रीजन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू द एंटीजन, ओके. So yeah, this we have discussed. FC region we have also discussed that FC region जो है that is only responsible for binding to other immune cells and performing the effective functions which are necessary to destruct or remove the pathogen. Okay. And many different form of FC receptor exist. That is जो हमारा IgA, IgG, D और E and M class जो हमने देखा, that is FC region only, right? FC region जो हमारा है, sorry. सो जो ये FC रीजन है, इसी में डिफरेंस की वजह से हमारी बहुत सारी जो क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हैं. सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ FC रीजन एग्जिस्ट का मतलब यही है इस स्टेटमेंट का, ओके. सो या एंड ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबॉडीज, this we have already discussed many times, but here it is written in a summarized form. So yeah, let us discuss it. Antibodies are immunoglobulin molecules, okay, because they belong to immunoglobulin superclass of proteins, okay. Second one is antibodies are antigen specific and binds to foreign molecules to host, okay. The molecules which are foreign to the host, self molecules के साथ bind नहीं करेगा, जो host के अपने body के अपने अंदर के molecules हैं उसके साथ antibody bind नहीं करती, it binds to the molecules which are foreign to the host, okay. And they are produced by activated B cells which we have already discussed. Antibodies are first molecules participating in specific immune response, okay. जब उस पहले हमारा क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कम्स इनटू प्ले, ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड नॉन स्पेसिफिक के बाद जब आफ्टर फ्यू डेज ऑफ एक्सपोजर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कम्स इनटू प्ले, तो एंटीबॉडीज दे आर द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग देन, ओके. एंड दे मीडिएट इफेक्टिव फंक्शन टू न्यूट्रलाइज और एलिमिनेट द फॉरेन इन्वेडर्स or pathogens or antigens, whatever you'd like to call them, okay. So now we'll be discussing the different immunoglobulin classes, और इन डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को और क्या बोलते हैं, आइसोटाइप्स भी बोलते हैं, ओके. सो नाउ विल बी डिस्कसिंग दीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस इन अ लिटिल डिटेल, ओके. सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, IgG, E, D, M and A, okay. So what is the difference? Here you can see जो एक मेजर डिफरेंस अभी हम फिगर से देख सकते हैं, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, दैट IgA, this is present as a dimer, okay. दो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैं एंड वन जॉइनिंग चेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू, दिस यू शेप्ड चेन विच इज जॉइनिंग दीज टू एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, okay. So IgA it is present as dimer and IgM it is present as pentamer. And here you can also see that there is joining chain which is joining these 5 pentamers or 5 monomers of IgM, okay. So now we'll discuss one by one, each kind of antibody we'll discuss one by one, and
their effector functions. Okay, so one thing which I was telling you students, here we can see in this diagram, just now I told you that in IgM and IgE जो हमारा ये constant region है heavy chain का, क्या हमने पढ़ा था अभी कि IgM और IgE में क्या होगा, CH जो constant region of heavy chain है उसमें 4 domains present होंगे, CH1, 2, 3 and 4. You can see here. Also in this IgM you can see, wait, let me zoom it a little bit more. Yeah, so in IgM you can also see that 1, 2, 3 and 4 domains are present, or 4 segments are present in the constant region of the heavy chain, whereas in IgG, D and A only 3 segments or 3 domains are present in the constant region of heavy chain. Okay, here you can see, here also only 3 domains are there. Fine, so this is what we just discussed. So now let us discuss each kind of immunoglobulin in detail. Okay, its structure and its biological function. So the first one is IgG, that is immunoglobulin G. So the molecular weight of immunoglobulin G, it is 150,000 Dalton, and the H chain type in it in immunoglobulin G, it is gamma type. Okay, जो H chain का हमने पढ़ा था कि H chain के constant region के 5 types of sequence होते हैं, तो जिसमें gamma type sequence present होगा, that will be IgG. Fine. IgG is the most abundant class of immunoglobulin in serum and constitute about 80% of total serum immunoglobulin. तो serum में सबसे ज़्यादा concentration में कौन सा type of immunoglobulin is present? IgG. Fine. And yeah, so one thing which we have already discussed, that there are 4 subclass of IgG based on the little variation that is found in the sequence of the constant region. Okay, and IgG molecule consists of 2 gamma heavy chains and 2 kappa और 2 lambda light chains. ठीक है, heavy chain जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें तो gamma sequence ही होगा constant region में. जो light chain है उसके constant region में either kappa और lambda sequence present होगा. हमने अभी डिस्कस किया था कि लाइट चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वो 2 टाइप का होगा, कापा और लैम्डा, और हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वो क्या होगा, 5 टाइप्स का होगा. फाइन. ओके, and the half life of IgG antibody is the longest. ठीक है, that is कि IgG antibody है उसका जो life है that is the longest. It stays for the longest time in the body fluid. Fine. And it is the only antibody that can cross placenta. ठीक है, तो जब थ्रू प्लेसेंटा मदर से फीटस में जो एंटीबॉडीज़ पास होती हैं दैट इज़ IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी. सिर्फ यही एंटीबॉडी जो है तो जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और जो बाकी एंटीबॉडीज़ की क्लास हैं बाकी 4 A, D, E और M, दे कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा. ओके, सो दिस इज़ नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है. पैसिव इम्यूनिटी की इज़ जब डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ही ट्रांसफ़र की जाती हैं फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग और वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड वाई नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग थ्रू नेचुरल मीन्स थ्रू प्लेसेंटा. ओके, सो दिस ट्रांसफर ऑफ IgG फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, दिस इज नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड इट कैन ऑल्सो एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी जो है एक प्रोटीन कैस्केड होता है, या आप दूसरे पेपर में शायद इम्यूनो के पढ़ेंगे. तो क्या होता है, व्हेन एंटीबॉडी इट बाइंड्स टू द एंटीजन, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है इन ऑर्डर टू किल द एंटीजन दैट इज़ बाइंड टू द एंटीबॉडी. ओके, अभी इतना ही आप पढ़ लीजिए, बाकी डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे दूसरे उसमें. So the biological functions of immunoglobulin G, first is that it is the major antibody produced in secondary immune response. What is secondary immune response? Primary immune response, जब कोई भी एंटीजन या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी को फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट करता है तो दैट इज़ द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. जब वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है सो दैट इज़ द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, तो IgG तब क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. सो IgG इज़ द मेजर एंटीबॉडी. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgG. ओके, एंड IgG1, ये सॉरी टाइप होना भूल गया, दैट इज़ IgG1, IgG3 एंड IgG4, they readily cross the placenta
and play important role in protecting the fetus. So these three subclass of immunoglobulin G, ये क्या करते हैं, placenta को these three subclasses cross. Okay, and rest, yeah. ओके बाकी तो आप पढ़ ही सकते हैं. दिस इज IgG1 एंड IgG3. दे बाइंड्स विथ हाई एफिनिटी टू FC रिसेप्टर ऑन फेगोसिटिक सेल्स एंड दस मीडिएट ऑप्सोनाइजेशन. तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, देखो जैसे कोई एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है, ठीक है, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है या जो FAB रीजन है एंटीबॉडी का, वहाँ पे कोई एंटीजन बाइंड किया, ठीक है. तो नाउ जब एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड कर जाता है, देन द FC रीजन जो है एंटीबॉडी का, इट बाइंड्स टू अ मैक्रोफेज, ठीक है. एंड देन जो मैक्रोफेज होता है, इट रेडिली एनगल्व्स द एंटीजन दैट इज बाउंड टू द एंटीबॉडी. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है. तो एंटीजन जब एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है ना, उसके बाद फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं, उसके लिए एंटीजन को कैप्चर करना बिकम्स मोर ईजियर. So that process is opsonization. Okay, and immunoglobulin G, it also helps in bacterial immobilization and neutralization of toxins and viruses that enter the body. Okay, so the other type of immunoglobulin second time is IgM. IgM क्या है, जिसके constant region में mu sequence is present. Okay, and the molecular weight of IgM is 900,000 Dalton. और IgM सीरम में 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम कंसनट्रेशन जो है वो IgM का होता है, ठीक है. लार्जेस्ट कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है सीरम में, दैट इज IgG. फाइन. एंड IgM इज सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स एंड इट एग्जिस्ट इन पेंटामेरिक फॉर्म. अभी हमने देखा IgM जो है इट एग्जिस्ट इन पेंटामेरिक फॉर्म. ओके, एंड IgM अगर पेंटामेरिक फॉर्म में अगर आप देखो, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में देयर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है. वेट, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में देयर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. तो IgM में अगर देयर इट इज़ अ पेंटामेर, तो कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, देयर आर टोटल ऑफ 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. ओके, लेकिन ये क्या है, 10 एंटीजन से बाइंड नहीं कर सकता एट द सेम टाइम, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है. इफ़ वन एंटीजन इज बाउंड एट दिस साइड, सो इट विल प्रोवाइड स्टेरिक हिंड्रेंस टू बोथ दीज साइड्स. ओके, ठीक है. तो एट द सेम टाइम IgM कैन नॉट बाइंड टू 10 एंटीजन मॉलिक्यूल्स. 10 से कम से ही बाइंड करेगा वो. ऑल्दो इट हैज़ 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, बट इट कैन नॉट बाइंड टू 10 एंटीजन्स एट द सेम टाइम्स बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय these antibody molecules. Okay, so it is the major antibody produced during primary immune response में जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, सो उस समय जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उस समय मेजरली कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म होती है, IgM. ओके, एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे IgG. फाइन. ओके, सो बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन M. सो इट इज so it is, which we have already discussed, that first antibody produced in primary immune response. and कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए जो हम ये हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का जो पाथवे होता है, दैट आफ्टर एंटीजन हैज़ बाउंड टू द एंटीबॉडी, उसके बाद अ सर्टेन कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रक्ट द एंटीजन और रिमूव द एंटीजन, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन IgG करता है, एंड IgM जो है IgG से भी ज़्यादा एफिशिएंटली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करता है. एंड IgM प्लेज इंपॉर्टेंट एसेसरी रोल एज सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ड्यू टू J चेन. तो नॉर्मली जो सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट इज़ IgA. सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज मतलब दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द सीक्रीशंस ऑफ बॉडी. जैसे बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, म्यूकस प्रेजेंट होता है, टेयर्स होता है, स्वेट होता है, जो बॉडी सीक्रीशंस हैं, ठीक है. तो सीक्रीशंस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन. सो मेजर सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgA. इम्यूनोग्लोबुलिन A इज द मेजर सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, बट IgM it is also present in certain certain secretions of the body. Okay, the next one IgA. So IgA में जो हमारा H chain, constant region of H chain होगा, that will be of alpha type. Okay, and the molecular weight of IgA is 320,000 Dalton, and it constitute about 10 to 15% of total serum immunoglobulin.
So as I already told you that IgA, it is a secretory immunoglobulin. So it is present in breast milk, saliva, tears and mucus of bronchial, genitourinary and digestive tracts. Fine. And IgA, it primarily exists as monomeric form, but dimeric, tetrameric and some trimeric forms, they are also present. जब बॉडी सीक्रेशन में IgA is present, तो बॉडी सीक्रेशन में इसका क्या डाइमेरिक या मल्टीमेरिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट. ओके, सो या सब क्लास ऑफ IgA जो हमने पढ़ा था कि IgA का 2 सब क्लास हैं, IgA1 एंड IgA2. ठीक है. एंड डाइमेरिक फॉर्म ऑफ IgA, इट कंटेन्स J चेन एंड सीक्रेटरी चेन. J चेन जो हमने पढ़ा था कि जो एंटीबॉडी के मोनोमर्स होते हैं, अगर मल्टीमेरिक फॉर्म में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जैसे पेंटामेरिक IgM होती है, तो उसमें क्या है, द मोनोमर्स ऑफ एंटीबॉडी दे आर जॉइंड बाय J चेन. सिमिलरली द डाइमेरिक फॉर्म ऑफ IgA, इट कंसिस्ट ऑफ अ J चेन एंड सीक्रेटरी चेन. ओके. And IgA, it can cross epithelial layer and enter into body secretion. तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें मतलब जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करके बॉडी सीक्रेशन में आ रहा है, इट इज़ नोन एज ट्रांससाइटोसिस, दैट इज अक्रॉस द सेल. ओके, सो ट्रांससाइटोसिस. और जो IgA मॉलिक्यूल है, IgA के जो डाइमर्स हैं, उसमें एक सीक्रेटरी चेन भी प्रेजेंट होती है. सो दैट सीक्रेटरी चेन, इट हेल्प्स इम्यूनोग्लोबुलिन A इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांससाइटोसिस, जिससे ये क्या होगा, बॉडी सीक्रेशन में प्रेजेंट आ पाएगा. ओके, बाय क्रॉसिंग द एपिथेलियल सेल्स. Okay, so biological function of IgA is it can cross the epithelial layer and enter into body secretion and provides local immunity in GI tract, respiratory tract, genital tract, etc. तो जो mucus present होता है GI tract में, respiratory tract में, genital tract में, वहाँ पे क्या है, IgA, immunoglobulin A is present. तो वहाँ पे क्या होगा, it will provide immunity. Okay, and IgA, it is also present in tears and saliva. And in body secretion, IgA, what it does, it neutralize viruses and prevent attachment on host surface. Okay, prevent the attachment of virus on the host surface. Okay, the fourth class of immunoglobulin, that is IgD. तो इसमें क्या है, जो constant region of heavy chain है, उसमें क्या होता है, delta type is present, and the molecular weight of IgD is 180,000 Dalton, and it is present in very low concentration in serum. Only 0.2% of immunoglobulin that is present in serum is IgD. Okay. And IgD का भी there are 2 subclasses, IgD1 and IgD2. And IgD together with IgM is the major membrane-bound immunoglobulin expressed on mature B cell. तो हमने जो अभी देखा in the very starting what we discussed कि सबसे पहले एंटीबॉडी कैसे प्रेजेंट होती है, इन द मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म. बी सेल के मेम्ब्रेन में एंटीबॉडी विल बी बाउंड, और उसके बाद जब वो अपने स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करती है, उसके बाद वो क्या होगा, इन सीक्रेटरी फॉर्म जो है बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होगी. तो जो बी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, आइदर IgD और IgM. फाइन. एंड IgD, it also has role in maturation and proliferation of B cells. Now the last type of immunoglobulin is IgE. and IgE कौन सी immunoglobulins होते हैं, जिसमें constant region of heavy chain is of epsilon type, and the molecular weight of IgE is 200,000 Dalton.